Hello, dear children. This is French Revolution Part 4, in which we are going to discuss about France abolishes monarchy and becomes republic. Before proceeding further, just look at these maps. The map which is on the left side, the green part which you can see, this is Prussia. It was one of the most powerful empire during 1791 1792, and look at this Austrian Hungarian empire. इसको आप देख सकते हो आजकल के मैप के साथ कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं. लाइक प्रशिया के लेफ्ट साइड पे बेल्जियम है, तो लुक एट द राइट साइड एंड फाइंड आउट द बेल्जियम. बेल्जियम इज अबव फ्रांस. फ्रांस से ऊपर नीदरलैंड्स और इसके आगे जर्मनी. सो हम इन्हीं एरिया की जर्मनी, प्राग, पोलैंड, दिस वाज द एरिया जो पहले प्रशिया था. और इसके आसपास का जो एरिया था, इसके साथ का जो एरिया था, वो आपका रशियन एम्पायर था. लाइक लिथुनिया, लिथुविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज पहले रशियन एम्पायर में थी. तो इसको हम नहीं स्टडी कर रहे. हम यहाँ पे वारसा, जो पोलैंड, स्लोवानिया, सेस रिपब्लिक, जर्मनी का एरिया, दिस वाज ऑल द प्रशियन एरिया. France abolishes monarchy and becomes republic. As you know, monarchy means where there is a king's rule, and republic means where the head of the state is elected. So what happened? The situation of France was so tensed, and Louis XVI had signed the constitution, which entered and he entered with a secret alliance or secret negotiation with the king of Prussia, who was Frederick William. So rulers of France, neighboring countries, were worried by the developments in France. They made plans to send troops to put down the events taking place since 1789. Before this could happen, the National Assembly declared war against Prussia and Austria in April 1792. Thousands of volunteers joined army who saw war as a protest of the people against kings or aristocrats all over Europe. Among the patriotic songs sung by them was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lisle. It later became the national anthem of France. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris. This way it got its name. Actually, I hope you understood that Louis XVI was so confused and he was planning something कि मैं किस तरीके से फ्रेडरिक विलियम के साथ, प्रशिया जो एक पावरफुल एम्पायर है, तो फ्रेडरिक विलियम के साथ कुछ अलाइंस करूं और किसी तरीके से मैं अपना कंट्रोल वहाँ पे वापस से फ्रांस पे पा लूं. लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाती. इससे इसकी भनक पहले ही नेशनल असेंबली को लग गई थी. जैसे उनको भनक लगी तो उसी टाइम उन्होंने प्रशिया, नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वार डिक्लेयर कर दी थी. और उनका साथ देने के लिए लोग वॉलंटरली सामने आ रहे थे कि यस वी आर गोइंग टू, यस वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस अवर लाइव्स फॉर इट. तो वॉलंटरली आकर आर्मी ज्वाइन कर रहे थे. यस वी वांट टू ज्वाइन आर्मी. एंड उनका मेन एजेंडा था कि दैट हम लोगों को ये जो किंग है, एरिस्टोक्रेसी है, इस एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमें यूरोप से जो है ख़त्म ही कर देना है. और उसी टाइम पे पेट्रियाटिक फीलिंग जो लोगों की आ रही थी, उसमें ही रॉजर डे लेस्ली ने मर्सेलाइज जो है कंपोज किया था. और एंड लेटर इट बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस टू. Now let's see what was the result of revolutionary wars. First, economic difficulties and losses were the result of the revolutionary wars. Second, while men were busy fighting at the front,
women had to earn a living and look after their families. Third, a large segment of the population was convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section. Fourth, political clubs became popular where people could discuss government policies and their own plans of action. Fifth, the most successful of these clubs was that of the Jacobians, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Convent means building belonging to a community devoted to religious life. अब इतना क्लियर हो गया कि रेवोल्यूशनरी वॉर से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और लॉसेस हुए थे. विमेन को बाहर निकलना पड़ा, अर्न करना पड़ा फॉर द लाइवलीहुड, जो कि पहले मेन करा करते थे. फ्रांस का बहुत बड़ा सेक्शन जो था पॉपुलेशन का, वो कन्विंस हो चुका था कि जो पॉलिटिकल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और जो पॉलिटिकल राइट्स इन्हें दिए हैं, वो सारे के सारे जो राइट्स हैं वो रिचर सेक्शन को दिए हैं. बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता था. अब वो उनका क्या एक्शन रहेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, वो डिस्कस किया जाता था. और उसमें सबसे जो पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब था वो था जेकोबिन्स का, जिनको अपना नाम जो है सेंट जेकब इन पेरिस से मिला था. लेट्स फाइंड आउट विच मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द जेकोबिन क्लब. Members of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of society. They included shopkeepers, artisans, cooks, shoemakers, watchmakers, printers, servants, and daily wage workers. Their leader was Maximilien Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similarly to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles, who wore knee breeches. These Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning without knee breeches. Sans-culottes men wore a red cap that symbolized liberty. सो हम लोगों को पता चल गया कि जैकोबिन, जो कि एक पॉलिटिकल क्लब था, वो उन लोगों का था जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था सोसाइटी का. पहले थर्ड स्टेट को माना जाता था, लेकिन थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, उसमें भी सेक्शंस बन गए. एक तो रिचर सेक्शन, एक जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन. थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी, लेकिन नेशनल असेंबली फॉर्म करने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. कॉन्स्टिट्यूशन जब 1791 में बन चुका था, तो उन्होंने सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, जो रिच सेक्शन थी, उसको दे दिए थे. और उस वजह से इन लोगों ने अपना ही एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, जहाँ पर ये सारे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, कुक्स, शू मेकर, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, ये सब डेली वेज वर्कर्स ये इंक्लूड हो गए. इनके जो लीडर बने वो ये बने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. और इन लोगों ने अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने नी ब्रेचेस जो वो पहना करते थे नोबल क्लास, उनसे अलग हटकर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया, ताकि इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए. साथ साथ में रेड कैप पहनना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि लिबर्टी को सिग्निफाई करती थी. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of goods. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. अब
जैकोबियंस जो है इन्होंने एक वायलेंट अटैक जो है वो प्लान किया कि हम एक वायलेंट अटैक करेंगे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी कि भाई हम लोगों को जो सप्लाई है फूड की वो सही नहीं मिल रही, ये और प्राइसेस जो हैं चीज़ों के बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो 10 अगस्त 1792 की सुबह को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे अटैक कर दिया और उन्होंने किंग के गार्ड जो थे उनको मार दिया, किंग को अपना होस्टेज बना दिया। तो बहुत सारा मसैकर जो है, बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए थे। लेटर कि किंग को सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी वोटिंग हुई। देन असेंबली की में वोटिंग जो हुई उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो रॉयल फैमिली है, जो किंग है, उसको इम्प्रिजन कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो मानेंगे, लेकिन जब इनके हाथ में पावर दोबारा आ जाएगी, ये दोबारा किसी और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या इनके साथ जो व्यूज़ मैच करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर ये हमारे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, पहले से ही इनको इम्प्रिजन कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। Elections were held, and now all men above 21 years of age were allowed to vote. The newly elected assembly was called the convention. अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, काला है, गोरा है, कौन है। Every person who was a citizen of France was now eligible to vote. And but eligibility criteria ये रखा कि 21 years से एज अबव होनी चाहिए। So finally 21st December 1792 को they abolished monarchy, abolition of monarchy, and France was declared a republic. You know, republican form of government is that government where the head of the state or government is elected, where people has the right to choose their representatives, or we can say where the people elect the government. So this newly elected assembly was called as convention. And now there will be no hereditary monarch. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason because court said that Louis XVI ने अपने ही लोगों के साथ फ्रॉड किया, अपनी गवर्नमेंट, अपनी कंट्री के साथ फ्रॉड किया था। And he was executed publicly on 21st January 1793 at the palace of De La Concorde. डी ला कॉन्करेड में उसको जो है मार दिया गया, और कुछ देर बाद उसकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनेट, उनको भी मार दिया गया था।